Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? How are you, How sir? is everyone? How is Fine, everyone sir. else? How are Fine, you? sir. How are you? All well, all well. How's been the revision? Good, sir. Have you been reading your newspapers daily? Yes, sir. So let's check it. So have you read today's newspaper? Yes, sir. So what can you tell me the headlines? Uh, At least tell me what are the important news that is happening in and I around think the world. India and US are trying to make up a trade deal, tariff reduction of tariffs, and regarding Delhi blast and um, editorials the, regarding Bihar elections, the how that was going That on. that is not important for us. Political news has to be completely skipped. So we're not even going to discuss that. Yeah. What else? Security, Tushar. What from Sir, one security? of the chief Maoist activist has been Mm-hmm. shot. Who? His name is Madhvi Hidma. Which insurgent group? Some that I don't know, sir. Just Which forgot, tribe? I think. Which tribal group? At least you must be knowing. Any other developments with respect to the ongoing blast? Anything with respect to that? One more guy has been captured, sir. Okay, okay. Mr. Gaurav, have you read today's newspaper? Yes, I read, but actually I'm in the library, so I can't Okay, talk. okay. No problem. No problem. ठीक है, keep up with your reading habits and make sure you try to summarize the editorials. That will be good for you. Okay, moving on. Yesterday we studied about various industries. We started with the dairy and other industries. Now moving on, we have agro-based industries. Agro-based industries may what are the challenges and how we can move further. So what are the various agro-based industries that we have in India? So they are basically, you will see that these agricultural based industries, they will source their raw materials from the primary products as in from agricultural products as in. For example, we have, they will be based both. So this doesn't mean that it will be based only on plant-based products, but also dairying or for that matter, these will also come in this category. Additionally, they increase the value of agricultural output by processing it and create goods that can be sold and used. So tea leaves, tea leaves that are collected by tea garden laborers, what they will do, they will be paid very meager amount of money. When I was posted in Assam, so came across the idea that around 135 rupees per day was their daily allowance. They were claiming that we should get around 270 at least. Even if you consider 270 also isn't too much. 270 रुपए भी अगर आपको पर डे मिल रहे हैं बहुत कम है. Now when these tea leaves, they are, just give me a moment, I'll just be back in a moment, just give me a moment. Okay, so what I was saying is, ये जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, इनको काफी कम कीमत दी जाती है वहाँ जो प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए. For example, a certain tranche, certain packet of a tea leaves, it is priced at, let's assume 100 rupees.
जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट होगा, नाउ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टी गार्डन्स ऑफ असम, it will be taken upwards into processing units, it will be processed, then it will be packaged, and after that it will be marketed and even exported. तो अगर ये यहाँ पे 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ये जब तक एक्सपोर्ट इट में टर्न टू बी अराउंड 500 और मोर. अब ये जो बिगिनिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक उसकी जो वैल्यूएशन हो जाती है, this is what adds to the agricultural growth potential. So that is where the agricultural industries, the agro-based industries, that is how they function, isn't it? So this you must understand. What are the जिसमें देखो challenges, अभी फार्मर को कितना मिलता है, MSP की बात कर रहे थे पिछली क्लास में भी, फार्मर को कितना इसमें कीमत मिलती है उसके प्रोड्यूस की, और जो मैन्युफैक्चरर्स को कितनी मिलती है. तो इसमें एक बैलेंस मेंटेन. अब MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जो है, स्टडी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ही इज अ, उनके लाइफ पे एक किताब अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ऑथर? शी, आई रिमेंबर मिस प्रेमवदा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम. मिस प्रेमवदा की किताब है, उन्होंने उनके उस पे नहीं लिखी है कैसे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को नर्चर किया, बट उनकी लाइफ के ऊपर लिखी है. सो दिस डू यू कैन चेक द नेम ऑफ द बुक. Book written by Miss Priyamvada on the life of MS Swaminathan. ठीक है. तो how Dr. Swaminathan, he championed the cause of agricultural renewal. He understood the man who fed India. Yes, the man. What is the full name of this lady? She's a Harvard grad. Okay. So he understood, Dr. Swaminathan understood that what are the various challenges. What are the various challenges through which we can create a perspective for creating more useful opportunities for the farmers. Priyamvada Jayakumar. Yes, Miss Priyamvada Jayakumar. एक मिनट यार. Some network issues here. Anyways, so what I was saying is, if the total production cost of the agricultural produce, for example, farmer जो what will be included in the production cost? Okay, I will want you to answer this. क्या क्या आता है production cost में? क्या क्या चीजें farmer input डालता है? सबसे पहले start from the very, see, whenever you approach this, start very methodically. शुरू से लेके कैसे होता है farming, थोड़ा बहुत तो पता होगा. It takes rent, land rent or land rent. सबसे पहले तो आपको खेती करने के लिए क्या चाहिए? You need a land parcel. ठीक है? You need a land parcel. That is an operational land holding. You need an operational land holding. ठीक है. अब इसमें एक डेटा मैंने आपको अक्सर बताया है कि भारत में क्या हो चुकी है. पिछली क्लास को अगर आप रिविजिट करें, भारत में there has been a fragmentation of land holdings. In India, if we understand, there has been an extreme fragmentation. There has been an extreme fragmentation and per person जो land to man ratio है, man to land ratio, what is that, Hotrik?
Tell me. Mayuri, I would want you to answer as well. Anjali, I want more participation from you. You remain absent during the class. You are not present. 80% of the farmers hold less than देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, जो पता है वो नहीं बोलना है. मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे. मैंने क्या पूछा है और आप बोल क्या रहे हो, देखो फिर डांट पड़ेगी. मैंने क्या So पूछा 1 है? is to 11. सॉरी, 1 is to 11. व्हाट 1:11? So man to land ratio. ओके, 1:11. व्हाट वुड दैट मेक इट? 1:11 कितना परसेंटेज होता है? इट इज 1.19 हेक्टेयर्स. जो एवरेज एक भारत के पास, एक एवरेज फार्मर के पास और एवरेज अब एक पर्सन के पास जो लैंड है, दैट इज अराउंड 1.19 हेक्टेयर्स. अभी और भी कम हो गया होगा ये. तो दैट मीन्स ड्यू टू दिस एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, है ना, एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन, देयर हैज हमने कल क्या बात की थी, एक बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है जो 1950s में अगर किसी के पास एक बड़ा पार्सल है, वो 2010 में क्या हो जाएंगे, उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे उसके, isn't it? And we want to use agricultural extension services. I would advise most of you to keep your cameras on in the class, otherwise there is no point. Yeah. So fragmentation of land holding से क्या हो गया, अभी अगर यहाँ पे आप हार्वेस्टर लगाओगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करोगे, हाई यील्ड वैरायटीज का इस्तेमाल करोगे, इरिगेशन का इस्तेमाल करोगे, उसका रिटर्न आपको, यू विल गेट अ मच बेटर रिटर्न फॉर दैट. द रिटर्न विल बी मच हायर एज कंपेयर टू अगर इस पार्सल में आपको इतना आपका ट्रैक्टर का ही खर्चा आ जाएगा जितनी आपकी आमदनी नहीं होगी. सो इन दैट केस यू विल बी एट अ लॉस. सो दिस इज अ ग्रेटर चैलेंज. नाउ मैं फिर से एक छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए आपको कहाँ ले गया हूं मैं. ठीक है. सो पहली बात हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है. फर्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट MS Swaminathan's idea, right? Production cost. First point is land parcel, और जिसको मैंने कहा operational holding. What is the point number 2? What is the second point that you, second, दूसरी चीज क्या है जो आपको चाहिए when you need to do farming? What is the number 2 input that is given by the farmers? दूसरी चीज क्या है? Yes, Mayuri? Family labor. I want you to tell in sequence. Labor, correct. So पहले आपके पास जमीन होगी और जमीन पे काम करने वाला, you need labor. It could be, like you said, family, or it could be hired. It could be either of these. What else do you need? capital. और क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, बिल्कुल सही बात है. You need capital. क्योंकि आपको कोई भी सीड्स खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदना है, आपको इक्विपमेंट खरीदना है, अगर आपके पास बैल भी खरीदने हैं तो आपको पैसा चाहिए, ट्रैक्टर भी खरीदना है, हल खरीदना है, कोई भी चीज इनपुट आपको चाहिए, तो कैपिटल इज, आई वुड से, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट. नाउ इसके बाद क्या चाहिए? Resources is a very vague term, Gaurav. We have to be very specific. What resources? We are talking about very specific things here. कि क्या क्या खेती करने में क्या काम, कभी खेती की है या देखा तो होगा, खेती में क्या क्या होता है. आपको खेत चाहिए, ठीक है, खेत के बाद लेबर चाहिए काम करने वाली, फिर पैसा चाहिए खरीदने के लिए. अब पैसे से क्या खरीदोगे? So यू विल बाय machineries and seeds. इक्विपमेंट्स. ठीक है, इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? योर हल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लो. what else do you need? What else? और क्या चाहिए आपको? Seeds. Tractor, harvester. Harvesters. You need tractors, etc. whatever that equipment may be. ठीक है, बहुत सारी इक्विपमेंट छोटी छोटी चाहिए होती हैं आपको. सो आफ्टर इक्विपमेंट और क्या चाहिए आपको? अब खेती होगी तो खेती किससे होती है? सीड चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट. यू नीड इनपुट्स. नाउ वी कम टू इनपुट्स.
अब इसको कैपिटल को मैं क्रेडिट भी कह देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट, एंड एक्सेस टू चीप क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब मनी लेंडर वाला मैंने कल आपको ट्रैप बताया था कि कैसे किसान मनी लेंडर के ट्रैप में फंस जाता है, फिर वो लैंडलेस बन जाता है. फ्रॉम लैंडेड लेबर टू लैंडलेस लेबर, जमींदार. वी टॉक्ड अबाउट परमानेंट सेटलमेंट की बात की हमने, रैयतवारी, वो सारा वी डिस्कस्ड यस्टरडे. अब नो पॉइंट गोइंग देयर. तो इनपुट्स में क्या क्या आता है आपका, बताइए. एक एक बंदा एक एक इनपुट बता देगा मुझे. इनपुट्स में क्या क्या आएगा? Seeds, Seeds is the fertilizers, first. Seeds. Now we talk about manure. अब this is organic, or you need inorganic fertilizers as well, etc etc, और बहुत सारी चीजें. तो these are your inputs. ठीक है. इस तरह से और भी बड़ी सारी चीजें होती है जो एग्रीकल्चर में. अब पोस्ट हार्वेस्ट की अगर आप बात करें, अब प्रोडक्शन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगेगी. यू विल हैव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपको कह सकते हैं उसको, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. So this is the entire production cost that is involved, in gathering your agricultural produce. Now, if this is 100 rupees, Dr. Swaminathan said it should be 50% more. MSP should be production cost plus 50%, that is minimum. So minimum it should be 150% of the, इतना आपको minimum return farmer को मिलना चाहिए. This is the crux of the matter here. ठीक है. Now where were we? We were discussing about what is this entire thing, how agricultural ecosystem works. Now present हमारा status क्या है? We are the second largest producer of fruits and vegetables in the world. China number 1 पे है, we are at number 2. ठीक है, हम number 2 पे हैं. Just 2% of the crop is, और भारत में सिर्फ 2% crop process की जाती है. Most of it is consumed otherwise as well. लार्जेस्ट लाइव स्टॉक, ये तो आपको पता होगा, गाय भैंसे हमारे देश में सबसे ज्यादा है. येट 1% of the country's total meat production is turned into items which are value added. तो हमारा ना प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दैट इज स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. ठीक है, नेसेंट स्टेज मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज. इट्स just kind of developing into its own. Then we talk about how agricultural sector is a sunrise sector. Niti Aayog, which is a premier think tank of the country, identified how food processing industries is a sunrise industry having huge domestic demand and the ability to uplift the unorganized sector. Achha, can anyone tell me what is the percentage of unorganized employment in the country? more than 80%, more than 90%. No conjecture. If you know, you know. I don't want any conjecture here. Guessing नहीं करना है, पता है तो एक नंबर बोल दो. 80, 90, 70, 100 मत बोलो, एक नंबर बोल 90, दो sir, मुझे. 90. अच्छा, anyone else wants to pitch in? It is around 90%. It keeps varying. So when bulk of our employment is in unorganized sector, of which agriculture constitutes a major population. कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है? कल हमने डिस्कस किया था. 45%. अराउंड 45 to 50%. ठीक है. और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर का? 18%. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम इतना ज्यादा हम एग्रीकल्चर में हमारा लेबर जो एम्प्लॉयड है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयड है, पर उसका आउटपुट हमें कंपैरेटिवली कम मिल रहा है ना. सो प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग इट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, these extending these services can be a game changer, because India has been, what is India's economy called as?
India is an agrarian economy. We have been largely an agrarian country. So in that context, it becomes very important to understand how we need to leverage our agricultural sector. Services में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. We are doing well. Manufacturing maybe we are building on, focusing on Atmanirbharta. We are focusing on indigenization. Okay, but a lot of these things also need to be worked out. All right. Now, what are the factors? Okay, apart from this, food processing industry, this percent, blah, 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 not important. Anyways, now, what are the factors responsible for localization of agro-based industries in the Northwest India? अब factors, localization factors क्या होते हैं? पहले try to understand that. किसी भी industry, if we talk about any industry, not just agricultural, localization factors वो होते हैं जिनकी वजह से ये डिसाइड होता है कि वो फैक्ट्री कहाँ लोकेट होगी. इसके लिए ज्योग्राफी में there is this concept called as August-Lorsch एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल होता है एक. उसमें फॉर एग्जाम्पल there is you consider it as a triangle, raw material 1, raw material 2, ठीक है, और आपका, ठीक है. Now what will be the most plausible location of the market? मार्केट कहां पे होना चाहिए? Where should be the market? Should it be nearest? अब हमारा कोल इंडस्ट्री में क्या होता है? हम कोकिंग कोल कहां से इंपोर्ट करते हैं? ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. एनीवन फ्रॉम ज्योग्राफी? आई थिंक अंजलि. झारखंड. नहीं, कोकिंग कोल हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? सर ऑस्ट्रेलिया. यस, वेरी गुड. क्यों करते हैं? व्हाई डू वी इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? बिकॉज जो हमारा कोल Sir, है, because we it have has- low grade coal, like the peat and bituminous, but Australia has anthracite, which has high grade coal. हमारे में इंडिया में वी हैव हाई सल्फर कंटेंट. ठीक है, तो वी विल हैव द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन वाइजैग, which is why Vizag in case of coking coal raw material, access to ports. ठीक है, वाइजैग और चेन्नई, एनुरे. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स आपको ये समझना है कि रॉ मटेरियल्स, मार्केट एंड आपकी इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री की लोकेशन आपकी, इट हैज टू बी एक्सेसिबल. अब देखो, अब ये फॉर एग्जांपल वेट लूजिंग अगर इंडस्ट्री है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें रॉ मटेरियल्स में वाटर कंटेंट बहुत होता है. दे हैव वाटर कंटेंट. तो अगर आपने झारखंड में आपने आयरन ओर की माइनिंग की है, प्रोसेसिंग की है, कॉपर की है, उसको जाके जम्मू कश्मीर में नहीं बनाने का मतलब है, तमिलनाडु में जाके बनाने का मतलब नहीं है. ठीक है, इट हैज टू बी क्लोज. तभी आप, और एक और चीज, पानी की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तभी आपको पता है डीवीसी की आपने बात सुनी होगी. व्हाट इज डीवीसी? एनीवन? Damodar Valley Corporation. दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. तो हमने दामोदर, जो बंगाल का सारो था, हमने उसको चैनलाइज करके स्ट्रेंथ बना लिया. ठीक है, सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज, ऑल दीज बिग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कोल, स्टील, ऑल ऑफ दीज, दे आर लोकेटेड इन विसिनिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स. और क्या क्या चाहिए? लेबर आसानी से मिल जाती है आपको. सेंट्रल बेल्ट में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लेबर चीप मिल जाएगी. ठीक है, लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फिर आपको वाटर एक्सेसिबिलिटी. अब वहां पे पावर प्लांट्स भी लगे होंगे आसपास बड़े बड़े, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल ऑल्सो बी इजिली अवेलेबल. तो दीज आर दी फैक्टर्स. अब एक रॉ मटेरियल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो दिस इज द मोस्ट प्लॉजिबल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एंड आपका मार्केट की एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाएगी. अब एग्रीकल्चर के केस में देखो, आपने टोमेटो प्रोसेसिंग करनी है. ठीक है, आप टोमेटो की प्रोसेसिंग 1000 किलोमीटर दूर नहीं करोगे, कोशिश करोगे जितना क्लोजेस्ट हो जाए. सो दिस इज, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, हाउ इट इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द मार्केट. और पेरिशेबल के लिए इट हैज टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल.
क्लियर कॉन्सेप्ट? इसमें डाउट किसी को? नो डाउट्स, राइट? ओके, अब आ जाइए। अब फिर से अब इनको पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया है वही लिखा होगा यहाँ पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स and intensive agriculture ensure abundant supply of wheat, rice, sugar canes and fruits. तो हमारा जो पूरा सेंट्रल बेल्ट है, हमारा जो CWG रीजन है, आई विल टॉक इन कोपन क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। CWG जो हमारा है, तो यहाँ पे हमारा इट इज अ व्हीट बास्केट, हमारा राइस बास्केट, सीरियल बास्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस अबंडेंट। नाउ व्हाट एल्स इज नीडेड? पानी चाहिए आपको, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। आप इंदिरा गांधी कैनाल कनेक्ट करती है, राजस्थान में पानी लेके जाती है, तो वहां पे भी इंश्योर होता है। देन यू हैव फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट सपोर्ट्स क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब अभी आप तेलंगाना में जाके एप्पल की खेती करोगे, वॉलनट्स नहीं करोगे, ठीक है ना। दे रिक्वायर, अब टी कहाँ पे होती है? इट रिक्वायर्स अ सर्टेन क्लाइमेट। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज आल्सो सूटेबल, ठीक है। तो क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। अभी ना गुजरात में देयर वाज दिस विलेज, वहां पे दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट सम फ्रूट्स एंड सम पेरिशेबल आइटम्स, एंड सूरत, आई एम रिमाइंडेड सम विलेज इन सूरत, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग विच वन। तो वहां से क्या होता था, वो गांव से लेके जब तक सूरत हेडक्वार्टर्स में लेके आते थे वो फ्रूट्स, तो उनकी ना क्वालिटी वुड बी लाइक बाय द बम्प्स ऑन द रोड, इट वुड बी गॉन, फिर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं रह जाते थे। तो द गवर्नमेंट देयर टुक द स्टेप कि किस तरह से वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास कर दिया, ताकि टाइम भी कम लगेगा और दूसरा क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, एंड देन इट कुड बी टर्न्ड इनटू, यू नो, अब फ्रूट का तो वही है ना, फ्रूट अगर खराब हो गया तो उसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। आप फिर उसका कुछ वाइन बनाओगे या कुछ चीजें उस तरह इस्तेमाल करोगे, उसको जूसेस में इस्तेमाल कर सकते हो, पर दैट ऑल्सो यू विल हैव टू सी। बट इसीलिए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस थिंग। अब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से फ्रेट ट्रैफिक में बहुत फायदा हुआ था। अब वी हैव अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, है ना, आपका वो पूरा कनेक्ट करता है उस सिस्टम्स को। डायमंड क्वाड्रिलैटरल की भी बात होती है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट भारतमाला, ये आपने टर्म्स मेंशन करनी है एग्जाम में, भारतमाला, सागरमाला, all these, you know, conduits, all these links, they connect the entire country, the raw materials with the resources, you know, raw materials with the industries, ports with the industries, so that port की connectivity भी हो जाए। अब आपने प्रोड्यूस कर दिया, वो बड़े बड़े शिप्स तक जाने में आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो बड़ा सा इट्स ऑल इंटरट्वाइंड। नेक्स्ट इज द पॉलिसी सपोर्ट। पंजाब हरियाणा में आपको पता है पावर सब्सिडी काफी मिली इनको ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से, टैक्स बेनिफिट्स, इंफ्रा सपोर्ट, बाकी इलाकों में भी ये हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ मंडीज एंड कोल्ड चेन्स। नाउ हाउ मंडीज एंड कोल्ड चेन्स आर आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड, उसमें हमारा कोल्ड स्टोरेज का जो इनिशिएटिव है, that is also being looked into. Can anyone look up the data? How much of our food grains, percentage of food grains is lost due to, rotting in the FCI godowns? इसका एक data, somebody can check it. Next is, we also need skilled and semi-skilled workforce. ठीक है, availability of both local. अब आपको सेंट्रल हार्टलैंड में क्या है, आपको चीप लेबर मिल जाएगी, that can do the manual work, but where you also need skilled people to execute some of the tasks. There you will require some people who can be hired from various other regions, city centers. Also, proximity to the market. That always remember that triangle जब agricultural industrial का location आपके दिमाग में आता है, remember that triangle, raw material, market, then industry. Okay. Also, research and extension services. अब लुधियाना में आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो टेक्निकल इनोवेशंस और एग्री प्रोसेसिंग में इनोवेशन लेके आती है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट इलाकों में आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप उस तरह के और नए नए सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज, आप जैसे कॉटन के उसको लग जाती, बोल्ट वॉर्म लग जाता है कॉटन को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप दिस पेस्ट रेजिस्टेंट, है ना, वो आप ला सकते हो। अबाउट 10 to 20% गेट्स वेस्टेड। आई थिंक देयर इज सम एग्जैक्ट डेटा, तो आप वो देख लीजिएगा।
कि कितना परसेंटेज आप कितने टन्स वो कितना जीडीपी में परसेंटेज लॉस होता है उसका बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा ये चीज अगर आप समझेंगे दिस ऑल दीज पॉइंट्स इफ यू मेंशन इन द एग्जाम, सो दिस विल ऑब्वियसली गिव यू, मतलब कुछ छूटने वाला नहीं है फिर। यू विल ऑलवेज ऑब्वियसली इतना भी मेंशन करोगे एंड यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। हाउ विल यू शो इंडिया के मैप में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री, लेट्स ट्राई टू मैप कि on the map of India which region would be तो कौन से रीजन में आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी। अब इफ यू टॉक अबाउट दिस बेल्ट, यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा होंगी 74 मिलियन टन, ऑल राइट। इन दिस रीजन व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील विल बी वेरी पॉपुलर। ठीक है, आपका ये कौन सी बेल्ट है यहाँ पे, सिंगबम। सिंगबम इज नोन फॉर विच, ज्योग्राफी अगर आपने पहले पढ़ी हो प्रीलिम्स में स्टेज 1 में तो आपको याद होगा सिंगबम में क्या मिलता है। खेतरी माइंस में क्या मिलता है आपको। आयरन। कॉपर कहाँ पे ज्यादा मिलता है। सर राजस्थान। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। फिर उड़ीसा। वहां पे क्या मिलता है, व्हाट विल कोल। यू गेट देयर। हम्म, कोल। कोल मिलेगा, और क्या मिलेगा। proximity to port will help you in the export potentiality of the region. Okay, now let's come towards the market for fruits. Fruits आपको कहाँ मिलेंगे, this will be the belt that will dominate fruits। यहाँ कौन कौन से आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा मिलेंगी। एप्पल्स, Strawberry and apples. pears, you will have walnuts, most one very important exotic, it is not a fruit but it is an exotic item that is found in north of India, and it has a great demand in the west. सैफरन, कहाँ मिलता है सैफरन। कश्मीर। कश्मीर बहुत बड़ा है। पीर पांजल रेंज। पीर पंजाल भी बहुत बड़ा है। आई वांट स्पेसिफिक आंसर्स, नो लॉइटरिंग अराउंड। सैंतनी जे भी बहुत बड़ा है। आई वांट, ये तो बड़ा आसान सवाल है ना, आई डोंट वांट यू टू बी गेसिंग अराउंड दिस एंड नो गूगलिंग प्लीज। कौन सी सॉइल में मिलता है, बड़ा आसान सवाल है यार। फिर करेवाज डिस्ट्रिक्ट। पामपुर, ठीक है। इसको लोकली क्या कहते हैं सैफरन को, जाफरान, जिसको आप केसर भी कहते हो, इट्स लोकली नोन एज जाफरान। ठीक है, नाउ दिस सेंट्रल बेल्ट हेयर, लॉट ऑफ सीरियल्स, राइस, व्हीट, कॉटन, ये सब। यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉटन आपका इधर आएगा, ये आपका इधर कॉटन आएगा थोड़ा सा। कॉटन यहाँ पे बहुत होता है, शुगर केन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ट्राई टू ऑल्सो मैप दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉइल्स। आपकी सॉइल किस तरह से स्पेस्ड आउट है। लेटराइटिक सॉइल में क्या होता है ना, रिगर सॉइल जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, जिसको आप लावा सॉइल भी कहते हो, है ना, डेकन ट्रैप्स में वी फाइंड इट। वहां पे किस तरह का आपको क्रॉप मिलता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, देयर इज समथिंग दैट इज वेरी एंडेमिक टू द हायर हिमालयाज, दिस there is this vegetative species, floral species endemic to the higher Himalayas, very popular. उत्तराखंड में आपको हायर रीचेस में देखने को मिलेगा काफी, उत्तराखंड, सिक्किम, हायर रीचेस। Have heard of rhododendrons?
रोडोडेंड्रॉन्स सुना है किसी ने? पढ़िए इसके बारे में थोड़ा सा, बेसिक्स थोड़े से रिवाइज करने की जरूरत है आपको. ऑल राइट, नाउ what is the significance of the, yeah, Darjeeling also, higher reaches of Darjeeling as well. It will be found in the higher mountainous landscapes. Now, what is the significance of the agricultural sector? First of all, we talk about income diversification. I always told you previously as well that farming or agriculture alone cannot make it sustainable practice for the farmers. It has to have subsidiary income sources. उसको बहुत सारे और income के source अपने रखने हैं. तो it helps, these agricultural processing helps in that. Next, we talk about how the employment potential is also looked into. The annual survey shows that agro industries contribute 36% of the industrial employment. ठीक है? Now, forward and backward linkages. Forward as in जब आपको प्रोडक्शन की तरफ जाना है, और बैकवर्ड जब प्रोडक्शन की तरफ, फॉरवर्ड मींस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ जाना है. ठीक है? पोस्ट हार्वेस्ट, warehouse, cold storage, logistical facilities, all that we discussed. So all these things have to be strengthened. ठीक है? अब फूड वेस्टेज की बात है. यूएन कहता है कि ये डेटा की बात कर रहा था मैं बेसिकली ना, 40% ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडिया इज लॉस्ट. 40% जो हमारा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, दैट इज लॉस्ट. एंड एनुअल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस नीति आयोग के अकॉर्डिंग इज अराउंड हाउ मच? 90,000 crore. This data you have to quote in the exam. Very important. You have to quote this data. ठीक है? Now, what are the government के various initiatives हैं? एक संपदा स्कीम के बारे में आपने सुना होगा. What is संपदा स्कीम? Yes? संपदा स्कीम क्या है? मेगा फूड पार्क्स के बारे में सुना है? ठीक है, various food parks in various parts of the country. Now we need agro processing clusters as well. ठीक है? Through a well equipped supply chain and cutting edge infrastructure, it aims to connect groups of producers and farmers. ठीक है? आपने अब प्रोड्यूसर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट भी करेंगे, और फार्मर्स को कनेक्ट करना इंडस्ट्री के साथ, जहां पे ये प्रोसेसिंग होके आगे लेके जाएंगे. देन मेगा फूड पार्क स्कीम. ठीक है? दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट. क्रिएशन ऑफ food preservation, processing, and capacities. The primary goal of the scheme is to build processing and preservation capacity and modernize or expand existing food processing units, which will reduce wastage. तो हमें अपना जो processing infrastructure है, we have to learn from some of the countries in the West, including Australia. It has, because ever since even in the 17th 18th century, जो यूरोपियंस का यहाँ पे इंडिया में या एशिया में आने का एक ये भी रीजन था, उनको कॉन्डिमेंट्स चाहिए होते थे. कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस. व्हाई दे वुड? बिकॉज दे हैव अ वेरी हार्श विंटर. इन यूरोप यू हैव अ हार्श विंटर, सो दे प्रिजर्व देयर मीट एंड देयर वेरियस प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए दे नीडेड कोल्ड स्टोरेज, बिकॉज तब कोल्ड स्टोरेज था नहीं, तो दे यूज्ड दीज कॉन्डिमेंट्स एंड these things, but they gradually developed their ability to build this infrastructure. So we have to learn some of these things from the countries in the West. Okay. All right. Also, we need to focus on curbing of the inflation. Food inflation is another challenge. Recently, I think rural food inflation has come down, while in the urban areas it is going up. The indicator for the growth rate for the GDP, it is pegged at around 6.2% for the upcoming fiscal and the current fiscal as well. So not much has been impacted, despite the what you talk about, the global headwinds around inflation, oil prices rising, the conflicts within the regions across Middle East, Ukraine war, even in and around India, that also does impact the oil prices. उसके बावजूद भी हमारे जो इन्फ्लेशन ओवरऑल है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस आर बीइंग विद इन द रेंज. नाउ इट आल्सो हेल्प्स बूस्ट ट्रेड.
earn foreign exchange. It serves as a significant source of foreign exchange. Middle Eastern nations have a high demand for basmati rice as well. तो हम अपने जो फूड प्रोडक्ट्स की अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करें. हमने डेयरिंग की बात की थी कैसे. कल ऑपरेशन फ्लड ने भारत का जो टोटल रिक्वायरमेंट दैट इज अराउंड 290 million metric tons and we are upwards of 300 million metric tons. So we have to increase our capacities even more and also take this best practice that have been learned from the dairy sector into other agricultural markets. एग्रीकल्चर के बाकी एरियाज में भी हम कॉपरेटिव्स को कैसे हम एक्सट्रापोलेट करके उनको भी एक न्यू रिसर्जेंस की तरफ लेके जा सकते हैं. We need something like Operation Flood here as well. Now we're talking about institutional setups. We have Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Dairying. इसका पूरा नाम मिनिस्ट्री का एग्रीकल्चर, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री इसी में आता है. ठीक है. Bakeries and cold storage, sugar mills, all of that. Then we have KVIB, Khadi Village Industries Board, Agro Industries Development Corporation, which focuses on agricultural input, equipment, and consultancy. Then we have Small Industries Development Organization. We also have SIDBI, Small Industries Development Board of India, that kind of helps in the agricultural sector as well. तो आपने कोशिश क्या करनी है when you're writing in your answers in the exam, you have to quote these points as well. अभी context तो मैंने आपको दे दिया. Understanding you have, but mere understanding would be sufficient. You may forget it, but make short notes. अभी जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, that is why I'm emphasizing every day. Make short notes, and so that towards the end of the examination, you are in a very good condition to answer those questions. Okay. Now what's the way forward? अपना एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं. ये मैंने आपको पहले भी बताया. हाउ मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. APMC आपका है, ENAM है, वो सारी चीजें. ठीक है. Then formulate integrated agricultural export mission. How, as I talked about, we are employing so much of our population in agriculture. Why not make it an export oriented thing? है ना. उसमें हम कुछ और इंसेंटिव्स दे दें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजों बाकी मैन्युफैक्चरिंग में देते हैं. एग्रीकल्चर को हम कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए. एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी लुक्ड इनटू. Entrepreneurship in agriculture. ठीक है. तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे भी. हमेशा जब भी कोई आंसर लिखते हैं, अपने नॉलेज से रिकलेक्ट करने के बजाय अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है. क्योंकि नॉलेज बेस हमारा लिमिटेड हो सकता है, बट दिमाग से हम और भी सोच सकते हैं चीजों को जो हम अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए आई ऑलवेज एनकरेज whenever it comes to descriptive examinations, UPSC Civil Services Mains or any other examination, the idea is to build a perspective and a deep understanding of the concepts. That is very very important. Merely cramming and just memorizing facts can only give a very superficial kind of an answer. But if you really want to grab the attention of the examiner, internalize the ideas, breathe them, per kind of make them a part of your own, internalize the idea. Then उसके बाद क्या करना, once you understand and internalize the idea, after that you have to do the remembering part of the factual details. अब factual details तो आपको याद करनी पड़ेगी. उसमें तो I would say that you should do. और उसके लिए short notes are advised. But conceptual part के लिए रट्टा मत मारो. समझो उस चीज को कि इसके पीछे. अब एग्रीकल्चर हमने पिछले 7 to 8 क्लासेस में पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर वी आर डिस्कसिंग. अब इसमें आपको ये समझना है कि उसको हम कैसे कॉन्टेक्स्ट में बिठाएं. जैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी में बात कर रहे थे कि ये सब लिंक्ड है. इट इज ऑल लिंक्ड. सिमिलरली विद इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो ऑल लिंक्ड. सो दैट ऑल्सो यू मस्ट बी trying to join the dots. Okay. Integrated approach. This is very important. Integrated nutrient management. ठीक है. Integrated farming की बात कर सकते हो आप. Plus you also talk about precision farming. ठीक है. Explore the possibility of private sector investment.
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी आप कुछ हद तक एक्सप्लोर कर सकते हो। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द APMC, ठीक है, कई कई जगह पे अच्छे से है, कई कई जगह पे नहीं है। अब GST भी रैशनलाइज हो गया है। पहले कितनी स्लैब्स होती थी GST में? हम्म 4 slabs. There were 4 slabs, no? Now it is limited to only 2, 5 and 28. And another one sin tax के लिए, sin goods के लिए अब एक sin goods के लिए, for sin goods 40% taxation for sin and luxury goods. बाकी आपके 2 slabs हैं, 5% and 28%. ठीक है। So these are a few things. फिर सर्वे ने क्या बात की है? सर्वे कहता है कि Indian agriculture has been reoriented in a view of number of issues that it has been facing, including climate change, we talked about yesterday, fragmented land holdings, that also you understand now. Very important, inadequate farm mechanization. Mechanization समझ रहे हैं ना? अभी भी बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल होता है, अभी हल का इस्तेमाल होता है, बैलों का इस्तेमाल होता है मैक्सिमम जगह पे फार्मिंग के लिए। लो प्रोडक्टिविटी का क्या कारण है? कौन बताएगा? अभी कल का लेक्चर किसने रिवाइज नहीं किया है? बता देंगे कोई? लो प्रोडक्टिविटी के 5 रीजन मुझे बता दें। मायूरी, टेल मी 5 reasons, anyone? So the first would be the fragmentation of land, and sir, mechanization is not that good. And so the third would be the seeds availability is not so like the high quality seeds is not available to the farmer. And so the fourth would be the innovation is not that much present in the इनोवेशन नेक्स्ट लेवल हो गया, बेसिक बताओ। lack of access to cheap credit. ठीक है। इरिगेशन, यस, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई। irrigation. कितना इंडिया में कितना परसेंट एरिया रेनफेड है और कितना इरिगेटेड है? So 60% of the land is dry land. वेरी गुड। सो 60% ऑफ आवर लैंड इज रेनफेड। 60% हमारा अराउंड 60% रेनफेड है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? rainfall. अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपनी टर्मिनोलॉजी सीधे यूज कर लो। You can start your answer on agriculture with this statement that Indian agriculture is a gamble on the erratic nature of the monsoons. You can start your answer straight away with this. ठीक है? So this will tell the examiner that you understand the nitty-gritty of how Indian agricultural system works. What is the major challenge? Which manifests in, then you can mention low productivity, poor post harvest management, और बाकी आप चीजें इसको थोड़ा सा रिफाइन करके मेंशन कर सकते हो। सो ट्राई टू इवन इन द इंट्रोडक्शन में ही आप बढ़िया से उसको आप समराइज कर दो। ट्राई टू गिव द एग्जामिनर द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव इन द फर्स्ट सेंटेंस इटसेल्फ। ठीक है? तो सीधे इसको समझ आएगा कि या दिस इज वंडरफुल। क्योंकि जो चेक करने वाला बंदा होगा ही विल
He doesn't need to read your entire answer. पहले आधे पेज में उसको grip him. He will read the answer, but raise the expectations, or as in मतलब give him an idea into your mind. ठीक है? So this is the thing. All right. Now let's briefly study about the mining sector. Mining sector के बारे में हम पढ़ लेंगे. This is also coming in the primary sector only. ठीक है? So the mining sector is one of the core industries में आ जाता है. आपकी जो core industries है ना, कितनी core industries है आपकी? 8 Yes, core industries. सबसे ज्यादा weight किसका है? refinery. ठीक है, तो आपने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर इंडस्ट्रीज का वेट कितना परसेंटेज है? 40%. आईआईपी में व्हाट इज आईआईपी? यू रिमेंबर? भूल गए? यस मायूरी, भूल गए आईआईपी? इंडेक्स ऑफ Yes, इंडस्ट्रियल sir, प्रोडक्शन. there are like refinery, electricity, steel. 40% शायद कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज जो आईआईपी में 40%. ठीक है, फिर बाकी भी. तो माइनिंग होती क्या है? व्हाट इज माइनिंग? Extracting valuable geological components from planets and other celestial bodies. So basically, अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं ना कुछ मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, दैट्स कॉल्ड एज माइनिंग. कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? 2.2 to 2.5%. तो आपको देखिए, आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे अभी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए. अब एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन हमने कितनी देखी थी टोटल? 17-18%, 17-18%. अब माइनिंग अगर आप पूरा आइडिया नहीं भी याद रहे, आपको इतना याद रहना चाहिए कि माइनिंग एज अ सेक्टर, इफ वी टॉक अबाउट द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री, अराउंड 2-2.5%. 2% आप याद रखो. एग्जैक्ट याद रखें तो बहुत अच्छा है, बट आपको एक इंटरव्यू में उस वक्त आपको डेटा याद नहीं आएगा ज्यादा. ठीक है ना, आपको डेटा उस वक्त याद नहीं आएगा, पर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना मेच्योरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको बेसिक, आप 2 का 5% ना बोल दो, जो सामने बैठा होगा बंदा वो समझ जाएगा इसको आइडिया ही नहीं है. अब 2.5 का आप 2 बोल दोगे चलेगा. You can tell sir in the range of 2 to 3%. That's sensible enough. That is what you have to understand. It is around 2.5% of India's GDP. ठीक है? And industrial sectors GDP and mining sectors GDP contribution ranges from, ठीक है, 10 to 11%. Now employment कितनी है आपकी? The mining industry employs 1.1 crore people directly. कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है? How many people are employed directly? 1.1 CR. And total 5.5 CR who are directly employed, indirectly employed. ठीक है? I think इसमें ना थोड़ा सा एक गलती हो गई. एक्चुअली जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, despite only varying between 2.2% of this, the mining sector's GDP contribution ranges from 10 to 11%. तो इसको आप डेटा एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना. ठीक है, डेटा का एग्जैक्ट अभी उसमें परसेंटेज क्या है. नाउ रेवेन्यू, इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, इंडिया जीडीपी माइनिंग फ्रॉम माइनिंग कितने बिलियन डॉलर है ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, द डेटा परसेंटेज इन जीडीपी टर्म्स शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है माइनिंग सेक्टर में, कंट्रोल किसके पास कितना है, दैट यू हैव टू सी. अब सेंट्रल लिस्ट, नाउ रिविजिट योर पॉलिटी क्लास, शेड्यूल 7 आर्टिकल 244 है ना, इट टॉक्स अबाउट 3 लिस्ट्स. अब जो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओन द मिनरल्स लोकेटेड इन इंडियाज EEZ. ठीक है, एंट्री नंबर भूल जाओ, एंट्री नंबर याद नहीं रखना आपको, इतना एग्जैक्ट नहीं जरूरत है याद करने की. ठीक है, EEZ कौन सा होता है? व्हाट इज EEZ? Exclusive Exclusive economic zone. economic zone. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? इट ओन्स द मटेरियल्स फाउंड विद इन द बॉर्डर्स. एंट्री नंबर इसमें भी छोड़ दो, आप बस इतना याद रखो कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना कहाँ पे कंट्रोल होता है. सो जो स्टेट बाउंड्री में मिनरल्स मिलेंगे आपको माइन करके, उसका प्रेरोगेटिव किसके पास होता है? हु होल्ड्स द एसेस? स्टेट्स.
And when it goes beyond the state boundaries from your territorial boundary to EEZ tak, there you have central jurisdiction. Then there is the International Seabed Authority, which regulates mining and exploration of minerals. ठीक है, जो इंटरनेशनल जो आपका हाई सीज में, ठीक है, हाई सीज में जो आपको कैसे आप माइन करोगे, कौन कौन से रेयर अर्थ्स मिलते हैं आपको, मॉलिब्डेनम, जिंक, ठीक है, आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप नीचे जाते हो तो वहां आपको कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद मेटालिक हाँ, नोड्यूल्स, ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल, उसमें ये सारे आपको मिलते हैं, ठीक है. इट इज गवर्न्ड बाय अ यूएन ट्रीटी टू विच इंडिया इज अ पार्टी. India has been granted the sole right to explore the polymetallic nodules spread across 7,500 square kilometers of the central Indian Ocean basin. तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ लेना है कि सेंट्रल लिस्ट में क्या आता है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास कितना कंट्रोल है, स्टेट के पास कितना है, और ISA का क्या इसमें है, ठीक है. What are the various government initiatives in this? FDI कितना है, 100% तक. Automatic route is allowed in with certain clauses. तो 74% तक तो इजीली है, और 100% तक कुछ इसमें caveats होंगे, कुछ regulations होंगे. Then you have district mineral foundations established for the well-being of. अब देखो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना, आपको माइनिंग के ऊपर कंट्रोल का बड़ा मसला होता है. अभी रिसेंटली MP में एक ऑफिसर का एक केस बड़ा पॉपुलर हुआ था, मिस्टर गौड़ा, है ना, सृष्टि देशमुख से बेटर हाफ, ठीक है. तो उसके ऊपर क्या क्लेम लगा था कि वो जो हाईवे पे कुछ वहां पे उन्होंने क्वेरिंग किया था, तो वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का काम यही होता है कि वो वहां पे जो लोकल्स हैं, ठीक है, अगर किसी एरिया में माइनिंग होती है, फॉर एग्जांपल इन अ सर्टन कोई हिलॉक है, कोई केबी के एरिया में चले जाओ उड़ीसा में या कहीं पे भी, एरियाज विच आर वेरी वल्नरेबल इकोलॉजिकली, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इंश्योर दैट जो लोकल हैबिटेशन है, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन हो अच्छे से, और अगर उनको उनकी विल के बिना उनको वहां से हटाया भी ना जा सके. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं दैट DMF का काम होता है यहाँ पे, ठीक है. देन यू हैव काबिल इंश्योर्स सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, दिस इज अनदर स्कीम. देन खनिज क्षेत्र कल्याण योजना. खनिज का मतलब ही क्या होता है, आपके जो मिनरल्स है ना, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, to ensure well-being of those who are impacted by mining and the environment carried out by the DMF. कभी कभी ना, जैसे अब प्रीलिम्स के सवाल होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कई बार आपने कोई क्वेश्चन ना पढ़ा नहीं होता, बट कोशिश या क्या करनी है आपने कि आपने ना उसको समझने की कोशिश करनी है सवाल को. अभी आपका नॉलेज बेस इतना ब्रॉड हो चुका है, इतनी ओवर द लास्ट सो मच टाइम वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, तो योर नॉलेज बेस इज इनफ. यू हैव बीन रीडिंग सिंस योर चाइल्डहुड. आपने बचपन से जो किताबें पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो, तो आपके दिमाग में बड़े ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है. अब आपने उस इंफॉर्मेशन को निकाल के यूज़ कैसे करना है, उसके लिए यू नीड अलर्टनेस. पढ़ते वक्त अलर्टनेस चाहिए, पढ़ते वक्त थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए, ठीक है. देन यू हैव नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट for regional and detailed exploration of minerals. So these are a few initiatives, just mention them. And if there are new schemes that government updates from time to time, that also you should keep updating in your short notes. ठीक है. Now government initiatives, as it has been mentioned here, जो हमने अभी डिस्कस किया, काबिल स्कीम, आप ऐसे ही एक बना सकते हो एक फ्लो चार्ट, ठीक है, एग्जाम में, to tell the examiner that you know the answer. ठीक है. वे फॉरवर्ड क्या है आपका, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ माइनिंग डिस्प्लेस पर्सन. अब देखो ना, माइनिंग जब करते हो आप, कई लोगों को उनके घर से बेघर होना पड़ता है. जो लोग ट्राइबल एरियाज में फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन लिविंग इन दोज एरियाज, दे हैव बीन इनहैबिटिंग दोज एरियाज, you cannot just relocate them. There is an emotional connect, then you don't give them proper, उनको compensation भी नहीं मिलता है. Some people are not even willing psychologically to go. So lot of what you say, inconveniences are caused to these people in these areas. ठीक है ना. Utilization of district mineral funds सही तरह से नहीं होता है, उसमें भी you see leakages and corruption happens.
अब 100 करोड़ का फंड होगा, उसमें कितना किसानों को मिलेगा या माइनर्स को मिलेगा, अब वो भी देखने की बात होती है। नाउ इट विल, अब इससे क्या होता है ना, अगर आप सही करोगे, अब नक्सल्स को, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? रिविजिट आर इंटरनल सिक्योरिटी क्लास नाउ, व्हाट वी स्टडीड देयर, कि एलडब्ल्यू में क्यों चीजें डेवलप हुई थी। Because since independence and even before that, the position of these people who were subjected to harsh working situations, and they were kind of, वो जो हम डिकूज और बात करते हैं उस टाइम संथल परगनाज में, या बिरसा मुंडा वाली कहानी की हम बात करते हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों होते थे? क्योंकि आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे वो लोग। एंड आपने उनको उनके पेरेंट लैंड से हटा भी दिया, कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, उनकी कंडीशन खराब कर दी, और वहां आके तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, पैसा लेके जा रहे हो बाहर, और उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज को वर्शिप तक करते हैं, उनको सिर्फ खदेड़ के आपने बाहर निकाल दिया। नाउ दिस क्रिएट्स व्हाट? रिजेंटमेंट। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एलियनेशन, दैट हमारी आवाज तो सुनी नहीं जा रही। अब जब ऐसे लोगों के अंदर एक धीरे 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 एक सेंस ऑफ एलियनेशन डेवलप होगी, then over a period of time what happens, there are external elements who come in, then left wing extremism जैसे 1967 में आ गया आपका नक्सलबारी से, फैलते 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 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट कहाँ में फैल गया था, पूरा सेंट्रल बेल्ट ऊपर से लेके नेपाल से लेके नीचे तक पूरा फैल गया था। gives an opportunity to the Naxalites, the ideologues, to indoctrinate the people that the state is not for your welfare, you have to take up arms. That's where the inflection point happens, and that's where it is very, very important to ensure that the fruits of development do percolate to the last mile. This is imperative. This is very, very important. Okay, then effective implementation of the mineral policy, allocation of blocks, the allocation of mineral blocks, that has to be transparent. उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कितनी है नहीं है, आई विल नॉट स्पीक अबाउट दैट। देन देयर इज अनदर चैलेंज, जब आप कोई भी, मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी कि दो तरह की असेसमेंट होती है। फर्स्ट इज द environmental impact assessment, the second one is the social impact. Who will explain to me both of these impacts? कौन explain करेगा? Yes, tell me. अब कोई भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, माइनिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हो या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा रहे हो इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, तो सबसे पहले उसकी EIA की जाती है कि हाउ विल दैट प्रोजेक्ट इम्पैक्ट द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट रीजन। ठीक है, उसके ऊपर देयर आर कमिटीज आर instituted, they review this issue, how this will impact, experts are involved. Once that is done, the next is social impact assessment. Now every project, it will not be 100% positive, 100% negative. There will be what? Positive externalities, there will be negative externalities. So in the SIA, what happens? In the social impact assessment, you weigh the positive externalities for whom? किसके लिए देखेंगे हम? किसके लिए देखेंगे? For the people. For the local population who will be impacted. So we'll look it for the people, जो लोग वहां पे locals हैं, and how will it impact them? उनसे फायदा क्या होगा उनको? What will be the benefits? If the benefits are more and negative aspects are less, it's given a go ahead. That is the social impact assessment. It provides them jobs, it provides them better amenities, better infrastructure, but then there will be pollution, there will be effluents, they may be displaced. So वो weigh in करेंगे कितना नुकसान है, कितना फायदा है, और उनका psychologically how they are willing to move. So these are the things that will be looked into. ठीक है? And then you have, this is the EIA and SIA we're talking about. Then National Green Tribunal, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको भी देखा जाएगा। यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि इलीगल सैंड माइनिंग, अब सैंड माइनिंग बड़ा गलत काम होता है। अब रिवर बेड को पूरा आप खत्म कर देते हो, फिर बोलते हो फ्लड आ गए, फ्लड तो आएंगे ही,
तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एक चीज है. Single window and time bound environment forest clearance will be key to timely allocation of blocks and meeting the demands. ठीक है, तो ये भी चीज है. दूसरा, ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करें. अब जो भी माइनिंग होती है आपकी, रैट होल माइनिंग होती है, आप पहले, मैंने दोबारा नहीं मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा, कैसे वो आपको अंदर घुस कर जाना पड़ता है लिफ्ट से विद इन द केव्स एंड वेरी वल्नरेबल सिचुएशंस. सो दैट इज समथिंग दैट आल्सो नीड्स टू बी लिंक्ड टू. सो इंडिया का जो मिनरल वेल्थ है, हम उसको कितना हद तक एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसको काफी एक ज्यादा पोटेंशियल. कैन यू प्लीज चेक द परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन द माइनिंग सेक्टर बिफोर वी रैप अप द क्लास? अभी तक किसी को डाउट्स है आज की क्लास में? एनी डाउट्स? Sir, 2 to 2.5%. However, it same. account a larger share of total industrial sector, around 10 to 11%. हाँ, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें 11% मान लो, और टोटल जीडीपी का 2% मान लो. ठीक है, दैट शुड बी योर. एनी डाउट्स इन द क्लास टुडे? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनी डाउट्स? ऑल क्लियर, राइट? ठीक है, we will continue tomorrow. Just make sure that you do make short notes. Don't miss out on the, don't make the, backlog को pile मत होने दो. Keep it going and ensure that you keep the momentum going. Sir, बाकी about देखते हैं. weight losing industry, please explain. Sir, वेट weight लूजिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जहां से रॉ मटेरियल हम सोर्स करते हैं, वहां से जहां उसको प्रोसेस किया जाता है, तो इट लूजेज इट्स कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स, तो वाटर लॉस होता है, मॉइस्चर लॉस होता है, तो इट लूजेज कंटेंट. सो दैट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल कोल है, या पेरिशेबल आइटम्स का अलग कॉन्सेप्ट है ना, पेरिशेबल आइटम्स का वो अलग होता है. ये मोस्टली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम बात करते हैं कि दीज इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. जितना आप पास रख सको उतना बेहतर है. ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ठीक है, देन इन दैट केस विल मीट टुमारो. मेक श्योर कि पिछला भी है जो वो भी रिवाइज करते जाओ, और जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर पेस ऑफ योर रिविजन. ठीक है? डिनर कर लिया आप लोगों ने? अभी करना है? करेंगे जाके? हो गया सर. हो गया, चलो ठीक है. जिसने नहीं किया मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लो. ठीक है, हैव अ गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू. बाय. गुड नाइट Thank सर. you, जय sir. Thank you, sir. Jai. जय हिंद. जय हिंद.